Hello Eddies, today we are doing second unit of stress and time management. Course code is BPAS 186. Second unit from block 1. Second unit is understanding time management. So first we see important question, then we start our video. First important question is time management, meaning and significance. So let's get to this topic. So first question is here. What is the meaning and significance of time management? Discuss. Time management refers to managing time effectively so that right time is allotted to the right activity. Effective time management allow individuals to assign specific tasks allot to activity as per their importance. Time management refers to make the best use of time as time is already limited. It means जिस वर्क के लिए जो टाइम अलॉटेड है हमें उस वर्क को उसी वक्त टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज वी नॉट एबल टू कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम और दैट्स नॉट कम इन अ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट्स इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड देन गो अहेड. फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड फिर हमें से उस टास्क के ऊपर वर्क करना है की नीड होती है. टाइम मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं टाइम का. इफ़ वी हैव लॉट्स ऑफ टास्क, अगर हमारे पास बहुत सारे टास्क है तो हम कैसे अपने टाइम को अलॉट करते हैं कि हम उतने ही लिमिटेड टाइम में अपने वर्क को कंप्लीट कर ले इफेक्टिव. टाइम मैनेजमेंट मीन्स द इफेक्टिव यूज़ ऑफ आर रिसोर्स इंक्लूडिंग टाइम in such a way that we are effective in achieving important goals and that's make our goal and plan are simple. सो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना, और इफ़ेक्टिवली हमें अपने रिसोर्सेज का यूज़ भी करना होता है कि कैसे हम लिमिटेड टाइम और सही तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. तो हमें उसके लिए एक इफ़ेक्टिव टाइम की नीड होती है. अगर हमारे पास एक प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग होगी कि हमें कैसे कैसे अपने गोल तक जाना है, सो देन वी डू in a best way. It has been observed that an individual remains involved in multitask, which includes daily routine activity, performing job related duty, recollecting activities such as watching TV, attending party, going out with friend and family, etc. It is worth maintaining that when an individual is including in multitasking, especially a working woman, just a quote an example, who is at the position of the managing in the bank as multitask of carry outs not only to improve performance and providing its works but also to balance personal and professional life to avoid stress. Thus, it is essential for her and others to implement time management. अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है जो मल्टीटास्किंग होता है, जो मल्टी टास्किंग लोग होते हैं वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं. उनके पास एक बेस्ट स्किल होती है टाइम मैनेजमेंट की. विदाउट टाइम मैनेजमेंट नो बडी एबल टू रीच देयर गोल. सो इसमें जो एग्जांपल लिखा गया है वुमेन का, जो एक बैंक में जो वर्किंग वूमेन है, जो मैनेजर है बैंक की, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करती है. उसके पास हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं, इवन देन शी मैनेज एवरी सिंगल वर्क. सो हाउ शी कैन डू ईजिली, कैसे वो लेडी ईजिली ये चीज़ें कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ शी हैज़ गुड मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट. इफ़ शी हैज़, दैट्स वाई शी नॉट गेट stress. She always avoids stress and focus on their personal life and their professional life. So it is a best example of time management. You can also write this in your answer. It is to be noticed that time is limited for everyone to fulfill unlimited wants. There are certain characters of time
It is measured in units. Every individuals get the same amount of time each day, fixed 24 hour, to efficiently carry out her and his work, duty and responsibility. तो इसमें क्या लिखा है कि सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और उसी लिमिटेड टाइम में सभी को अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करना होता है, कि अचीव करना होता है। हमारे पास जितने भी वांट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे वांट्स होते हैं, वांट्स की तो हमारे पास कमी नहीं होती, हमें क्या क्या चाहिए उसकी तो कमी नहीं है, लेकिन उसे उस टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। सभी के पास ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, सभी के पास 24 आवर है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के पास 30 आवर है, किसी के पास 32 आवर्स है, ऐसा तो नहीं होता। सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम है और वो उसी टाइम में अच्छा प्रोडक्टिव अपने आप को कैसे बना रहा है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटीज़ को हैंडल करे, तो वो सब किस में आएगा, टाइम मैनेजमेंट में। It's not only applicable in a working woman and in a working man, it's applicable for a student also. Those who are good for time management, it means they are able to achieve their goal on time. Normally we all see in our environment lots of people has degree, several degree, but even then they not able to get job because some people waste their time in school and college for fun, they not focus on study, so that is also a reason. If they manage time for playing fun time allotted and study time also, so that time that person also able to achieve their goal. Here is time management incorporate. First is planning for effective time management. It is necessary for an individuals to plan her and his time in advance and prepare a to-do list to achieve the target. Exactly. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसी से स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, तो हमें सबसे पहले हमें उसके लिए प्री प्लान करना होगा। प्री प्लान इफ़ेक्टिवली प्री प्लान करके रखना होगा कि स्टार्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उन गोल को अचीव करने से सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है, एक बेस्ट प्लानिंग करना। बेस्ट प्लानिंग में आ जाएगा टू डू लिस्ट रेडी करना कि हमें कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करना है। सेकंड इज़ प्रियोरिटाइजिंग टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हमारे पास जो हम टू डू लिस्ट रेडी करते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे वर्क इंक्लूडेड होते हैं। तो उन वर्क में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी में रखेंगे। देन वी डू वर्क ऑन आर टू डू लिस्ट। फिर हम इफ़ेक्टिवली अच्छे से हमें पता होगा कि पहले हमें क्या अचीव करना है, पहले उस पर वर्क करेंगे और जो काम वर्क बचे होंगे देन उन पर जाएंगे हम। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टीम मेंबर्स। सबसे पहले हम डेलीगेशन का मतलब हमें समझते हैं कि क्या होता है। डेलीगेशन मीन्स डिवाइड टाइम फॉर एवरी टास्क। हमें सभी टास्क के लिए अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए। तो उसमें क्या बोल, जो हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम मेंबर्स की, उनको हमें पहले डिवाइड करना होगा कि हमें पहले कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से टास्क को बाद में करना है। अगर हमें ये क्लियर होगा कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, उसी उस टाइम पर हम एक अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट को लेके आ सकते हैं। देन इज़ सेटिंग गोल्स टू अचीव सक्सेस। तो उसके लिए हमें पहले अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। टू अचीव द डिज़ायर्स गोल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, team leaders should be identify and set goal and the targets and involve team members in the decision। अगर हमें गोल को सेट भी करना है तो पहले हमें उसके लिए सभी लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। हमें गोल बनाना पड़ेगा। गोल बनाने के बाद हमें उन सब जो टीम मेंबर्स हैं उनको गोल और टारगेट पर वर्क करने के लिए हमें मतलब उनका डिसीज़न भी लेना होगा कि कौन सा हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा। डिफरेंट लोगों का सभी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन सब से पूछने के बाद हम इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बट वी नीड टू डिस्कस टू अदर वन ऑल्सो एक्सेप्ट to ourselves, because every single person have their own experience, so with the other experience that's really easy to get our goal.
सेट डेडलाइंस टू अचीव द टारगेट। हमें अपने टू डू लिस्ट में डेडलाइंस को भी सेट करना होता है, क्योंकि हमें ये पता होगा कि कौन सा टास्क हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं, माइक्रो मैक्रो। तो हमें उन दोनों में से हमें टारगेट सेट करना होगा कि कौन सा कितने दिन में करना है। सपोज़ हमें फर्स्ट बुक 10 डेज में कंप्लीट करनी है, 1 to 10। तो सेकंड बुक के लिए भी हमें टाइम को सेट करना होगा कि जो फर्स्ट बुक है हमें वो 1 to 10 डेज में कंप्लीट करनी है। अगर हमारा डेडलाइन बोले तो जैसे 10 डेट हो गई, वो हमारी डेडलाइन है होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने टारगेट्स जो है उनकी डेडलाइंस को सेट करना होगा कि कैसे हमें अचीव करना है। मॉनिटरिंग्स टू इंश्योर कंप्लीटिंग ऑफ टास्क इन एलोकेशन टाइम। टाइम टाइम लीडर इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड इन आ अलोकेशन टाइम। सो जो हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको अलोकेशन टाइम से पहले हमें अपने टास्क को कंप्लीट कर लेना होगा, क्योंकि हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर हम अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे तो वो कुछ नहीं तो कुछ वो प्रोकेस्टिनेशन ही हो रहा होता है। प्रोकेस्टिनेशन मीन्स हम डिले ही कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे पर, वो नेक्स्ट डे कभी आ ही नहीं पाता। तो हमें उसके लिए कि अपने टाइम को अलोकेशन करना होगा, कि टाइम को डिवाइड करना होगा, कैसे 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 हमें अपने टास्क तक पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप। Significance of time management. Time management is very vital for any organizations as well as individual. Some of the reason for which time management is important are discussed below. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और एक सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो अब देखते हैं हमें कि कैसे क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं टाइम मैनेजमेंट की। प्रमोट इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हम कैसे इफ़िशियंसीली अपना वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने टारगेट को बनाना होगा, और जो गिवन टाइम जितना हमने उसको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए दिया है उसी टाइम में हमें अपने गोल को अचीव करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड इफ़िशियंसी, दैट इज़ कॉल्ड सॉरी फॉर दिस, नाउअडेज माई हेल्थ नॉट वेल। हाँ, सो वी कंटिन्यू। उसी को हम इफ़ेक्टिवली वर्क बोलते हैं, जैसे कि हम किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करते हैं। Improve performance. Time management can help an individuals to focus on the essential and important activity and avoid times doing tasks which are less relevant. इम्प्रूव परफॉर्मेंस हमें क्या बताया, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे, जो असेंटियल, जो एक इंडिविजुअल के लिए जो किस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, और कौन से टास्क को हमें अवॉइड करना है जिनको हम बाद में कर सकते हैं। जो असेंटियल है उनको उन एक्टिविटीज़ पर वर्क करना, और जो असेंटियल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पर टाइम को वेस्ट नहीं करना। उन टाइम को मैनेज करके हमें चलना है कि कौन सी चीज़ हमारी वैल्यू ऐड कर रही है, और कौन से थिंग्स कांट क्रिएट वैल्यू इन आवर वर्क, प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। गुड टाइम मैनेजमेंट गिव यू a better result. So first we need to identify what is relevant for us and then work on that area that's give us a productive result. That is better than without planning do anything. किसी बिना प्लानिंग के कुछ भी करने से बेटर है कि हमें प्लानिंग के साथ हम उस काम को करें। एंड अवॉइड इन एनी वर्क procrastination, because procrastination is the only thing that stop us and take us in a comfort zone. Reduce stress. How we can do this? हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? जो भी हमने अपना प्लानिंग करी हुई है, प्री प्लान, जो जितनी भी प्लानिंग्स हमने की हुई है, जितना टू डू लिस्ट बनाया है, उसको टाइम टू टाइम उसको फुलफ़िल करना। अगर हम टाइम टू टाइम फुलफ़िल नहीं करते तो हमें एक स्ट्रेस बना रहता है कि आज का ये टास्क है वो भी कंप्लीट नहीं, और हम अपने
टास्क कंप्लीट नहीं होने की वजह से भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसको हम अपनी नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हमने प्लानिंग की थी कि हमें आज क्या क्या स्टडी करना है, अपने टू डू लिस्ट में हमने बनाया हुआ था, और हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, तो एट दी एंड एट नाइट हमको ये चीज़ फील होता है कि हाँ, हमने अपना फुल डे वेस्ट कर दिया। तो इसी के लिए हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें जितना भी रिलीवेंट टाइम मिला हुआ है, उसी के अंडर अंडर अपने वर्क को कंप्लीट करने से हमारा जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। बूस्ट कॉन्फिडेंस। कौन लोग अपने कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बढ़ा पाते हैं? जो लोग अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं विद इन अ डेडलाइन, वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन हु फेल इन अ टाइम मैनेजमेंट स्किल। इम्प्रूव करियर अपॉर्चुनिटी। कंप्लीटिंग ऑफ टास्क इन द टाइम save a lots of time for other activity. By allotting time properly, one can concentrate on the careers buildings. It enhance scope of career opportunities. अगर हम अपने टास्क को टाइम पर ही कंप्लीट कर देते तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है, जिसके लिए जिसको हम अदर एक्टिविटी या फिर अपने करियर किसी चीज़ के लिए भी हमारे पास काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। दैट्स ओनली कम from the times we learn how to manage our time. I hope this topic clear for to you. आज मेरे को थोड़ा कोल्ड है, इसलिए थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं होगी, सो सॉरी फॉर दिस। Second important topic is techniques of time management. So let's see what's come in this. Here is question. Discuss the various technique of time management. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो उन टेक्निक्स को भी हम पढ़ेंगे। सो हेयर इज़ रिटन सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स दैट वी कैन यूज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ सेट गोल। अगर हमारे पास हमारा गोल ही सेट नहीं होगा तो हाउ कैन वी अचीव, तो हम अचीव ही कैसे कर पाएंगे। सेकेंड इज़ प्लान फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम रिसोर्सेज। हमें पहले प्लान बनाना होगा कि कैसे हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं बट टाइम इज़ लिमिटेड। वी ऑल हैव 24 आवर, नोबडी हैव 30 आवर, 31 आवर, 32 आवर, दैट्स वाई। थर्ड इज़ सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टारगेट्स फॉर योर सेल्फ एंड टीम मेंबर। हमें रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है जो अचीव करने में भी इजी रहे। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक प्लान्स को हम सेट कर रहे हैं जो हमसे कभी भी फुलफ़िल हो ही नहीं सकते हैं। तो प्लान हमेशा ऐसे होने चाहिए जो इजीली जो हम लोग फुलफ़िल कर पाएँ, और उन प्लान को हमें स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना है। जो अनअचीवेबल भी होते हैं उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप इंस्टेंट ऑफ thinking about how I can achieve this, how can I do this. So first we need to set goal. थर्ड इज़ यूटिलाइज टाइम। जितना भी टाइम हमें मिला है उसको उतने ही टाइम में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और थर्ड इज़ अचीवेबल टारगेट्स। हमें अपने लिए और अपने टीम मेंबर्स के लिए अचीवेबल टारगेट्स देने चाहिए इंस्टेंट ऑफ अनअचीवेबल। Prioritizing task in the to-do list on the basis of clear understanding of difference between urgent and important work. हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें पहले खुद ही क्लियर होना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ों को हम अचीव करना है, कौन कौन से अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क है पहले उनको रखना है, हमें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होगा ताकि हम उसको इजीली अचीव कर पाएँ। प्रिपेयर आर टू डू लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। जो भी हमारी फर्स्ट प्रियोरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे हमें अपने टू डू लिस्ट को रेडी करना है। प्रॉपरली फॉलो 80-20 प्रिंसिपल्स टू इंश्योर कंप्लीटिंग ऑफ टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। हमें 80-20 रूल को फॉलो करना है, 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना है। 80-20 प्रिंसिपल में क्या होता है थोड़ा मैं डिस्कस कर देती हूँ। 80-20 रूल में हम 20% जो हम अपना इनपुट दे रहे हैं उसी का रिजल्ट होता है 80%। जो हमारा आउटपुट आता है वो 80% जो आ रहा है वो उसी का रिजल्ट होता है 20% का। तो हम अगर 20% वर्क अच्छे से करेंगे देन वी गेट 80% रिजल्ट। स्टे फोकस टू अटेन
ऑप्टिमिज्म, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस। हमें एकदम फोकस्ड रहना है अपने गोल को लेकर, तभी हमें एक्सीलेंट रिजल्ट को हमें मिल पाएगा। और मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा। और उसके नेक्स्ट में है कि हमें अपने जो टारगेट्स हैं, जो हमारी टू डू लिस्ट है, वो ओवर बर्डन नहीं होनी चाहिए हम पे। जो भी हमारे टारगेट है वो हम इजीली अचीवेबल हो हमारे लिए भी और हमारे टीम मेंबर के लिए भी, हमें वो बर्डन ना लगे। उससे नेक्स्ट है कि हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, तभी हम अपने प्लान्स को अचीव कर पाएंगे। और उससे नेक्स्ट है कि हमें इंश्योर होना है कि हम मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें अपने गोल को अचीव करने के लिए। और हम वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए अपने प्लान को लेकर। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो हम वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हमें स्टार्टिंग किससे करनी चाहिए, हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए, देन वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम properly, and then we need to make to do list and prioritize your to do list, and add 80/20 rule in your to do list in your life also, and focus, give your full focus, don't waste your time, and don't become part of overburden. So next move on। जो भी हमें डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों को टीम मेंबर्स को दी है, वो प्रोडक्टिवली हमें करानी चाहिए। वो प्रोडक्टिव, उसके प्रोडक्टिव आउटपुट मिलने चाहिए। और उससे जो नेक्स्ट है उसमें है कि जो भी हमारे इम्बैलेंस वगैरह, जो हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, वो इम्बैलेंस जो भी वर्क चल रहा है, उसको टाइम टू टाइम फिनिश करना बाय काउंसलिंग की काउंसलिंग रखकर उसको टाइम टू टाइम अचीव करने के लिए बोलना कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं इन अ लिमिटेड टाइम। This topic is finished. Next we take third important topic, role of administrator manager. Here is discuss the role of administrator manager in the time management. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सबसे ज़्यादा अपेक्स होता है कि उसको पूरे टीम मेंबर्स को लीड करना होता है कि कैसे कैसे हमें अपने अचीव को, अपने मीन्स रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना, कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब किस में आएगा, टाइम मैनेजर के रोल्स में आता है कि वो किस तरीके से अपने टीम मेंबर्स को ट्रीट कर रहा है, कैसे पूरे टीम मेंबर्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छे से रूल्स वगैरह बना। फर्स्ट आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है कि एक पर्सन डिसीजंस वगैरह को लीड करता है और अच्छे मतलब डिसीजंस बनाता है, तो वो डेलीगेट्स में आता है। तो इसमें लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और उसको अपने गोल को और टारगेट को टाइम टू टाइम अचीव करना, और वो सब जो गोल है उस वो उनके एम्प्लॉयर्स ये सब के रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके वर्क से रिलेटेड होने चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सभी मेंबर्स को गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसी को फॉलो करते हुए अपने वर्क को मैनेज करना हो चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर को अपनी जो फाइल वगैरह है उनको वीकली बेसिस पर चेक करना चाहिए कि अभी कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना क्लियर है उसमें। तो ये सभी वर्क एक मैनेजर के होते हैं कि वो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए अपने फाइल को, अपने प्रोफाइल्स वगैरह को, इन अ वीक, एटलीस्ट इन अ वीक। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और मैनेजर होता है उनको अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट रखना है टूवर्ड्स टू डू लिस्ट कि हमने कितना फॉलो करा है, कितना हमने अचीव कर लिया है। तो थ्रू टू डू लिस्ट वी कैन सी आर अचीवमेंट। सो जो मैनेजर है होता है उसको अपने टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट रखना है। हमें इफेक्टिवली अपने टारगेट्स को अरेंज करना है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इन छोटे स्टेप्स को भी हमें फॉलो करना होता है। हमारे पास सभी स्टेशनरी आइटम्स अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक नोट पैड, पेन, फोल्डर। तो ये सब एक एम्प्लॉयमेंट के पास होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के पास होनी चाहिए, ताकि वो मिस्टेक को हाईलाइट कर पाए और वो इजीली अपने टास्क वगैरह को देखे कितना अचीव कर लिया है उसको टिक करने के लिए, और जो मिस्टेक है उनको हाईलाइट करने के लिए कि अभी कितना लेफ्ट है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये भी हमारे
वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम एक वर्क को करने के लिए अगर हमें पास ये अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें फिर से स्टेशनरी जाना होगा, जब फिर उन चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये सब भी अवेलेबल होना चाहिए एक एम्प्लॉयर के पास। तो ये सब भी एक मैनेजर की ड्यूटी है कि ये सब भी उसके कंपनी में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। और जो एम्प्लॉयर है वो मेक श्योर कि वो अपने जो भी लैपटॉप, जो भी वर्किंग चीज़ें हैं उनको ऑफ़ कर कर जाए, और अपने जितने भी डाटा है उनको सेव करे, और जितने भी रिपोर्ट्स हैं सिस्टमेटिकली उनको स्टोर करके रखना। तो ये सब भी एक जो मैनेजर होते हैं, ये सब उनको एक जो एम्प्लॉयर्स है, ये सब उसको जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको उसने अचीव करा कितना या नहीं करा, ये सब भी एक एम्प्लॉयर मैनेजर को टाइम टू टाइम अपडेट रखना होता है, कि जो मैनेजर है वो बता पाए एम्प्लॉयर को कि तुम्हारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तुम्हारे कौन कौन से वीक पॉइंट हैं, किन पर तुम्हें वर्क करने की नीड है। तो ये सब भी इसमें इंक्लूड हो। एक एम्प्लॉयर का अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके साथ एक अच्छा एम्प्लॉयर्स के साथ उनको कोऑपरेट करे अच्छे से, ताकि उनको बता पाए कि कौन कौन से टास्क पेंडिंग है और कौन कौन से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, और कौन कौन से अनप्रोडक्टिव वेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और कौन कौन से प्रोडक्टिव वे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, अचीवेबल हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो एम्प्लॉयर है वो इन सब चीज़ों पर भी फोकस करता है। और जो एम्प्लॉयर है उसको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई लोग उनकी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, सब लोग उसकी जो पावर है उनका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। नो बडी यूज़ अब्यूज़ वर्ड, कि कोई भी अब्यूज़ वर्ड्स का यूज़ ना करे, अच्छे से अपने वर्क पर फोकस करे, कोई भी जो उनको पावर मिली है उनका बिल्कुल भी किसी को हर्ट ना हो। जो मैनेजर है वो इनक्रेज करे एम्प्लॉयर्स को कि अब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और प्रॉपर ट्रेनिंग्स को लगाने के लिए, और वर्कफोर्स ऑफ वर्कशॉप इन ऑफिस, इसमें प्रॉपरली अपने वर्क को कंडक्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। हेयर यूनिट सेकेंड इज़ फिनिश, आर फर्स्ट ब्लॉक इज़ फिनिश। थैंक यू for watching this video, and please sorry, nowadays my health not well, so my voice is not clear to you, I think, and I just cleared this chapter for roughly. I hope this video is helpful, and if you wanna get important question, so I just attach link in my bio and in my description. Thank you.